Good morning, class. I am Miss Aina from Premchand Memorial Public School, and today we are going to deal with the rest of the chapter, that is chapter number 8, winds, storm, and cyclones. So we have covered till wind currents. Now I'll start from it. What is a wind current? So the blowing of wind due to the pressure difference in different areas is known as wind current. So the 2 points have been highlighted in your book, that is uneven heating of the earth's surface between the equator and the poles, and the other one is unequal heating of the land and the water surfaces. So the basic essence of unequal heating causes the pressure differences. How it is caused? So you must have seen the globe has one equator and two poles, north pole and south pole, two poles and an equator. So the sun is directly over the equator. So what happens when sun is directly over the equator? The air in that area heats up because of the heat from the sun. So as it heats up, it rises up, it becomes lighter and it rises up. So as a result, the pressure there decreases, and the cool air from the outside space, or the cool air from the surrounding space, occupies the place where the warm air existed. Opposite is true in case of the poles. So what happens? Poles are comparatively cool, so there is high pressure, but the air surrounding the poles, that is the air of the areas that surrounds the pole, are comparatively warmer and lighter. So what happens? The warmer air rises up, that creates a low pressure, and as a result, cold air from the polar region rushes to it and creates the pressure difference. Now लेट्स डील विद दिस टॉपिक इन हिंदी. तो विंड करंट क्या होता है कि अगर दो जगहों के प्रेशर में डिफरेंस आ जाता है और उस डिफरेंस की वजह से हवा इधर से उधर ब्लो करती है, इधर से उधर बहती है, इसको हम कहते हैं विंड करंट. तो दो तरह के पॉइंट्स हमारे में डिस्क्राइब किए गए हैं बुक में. तो पहला है कि अनइवन हीटिंग की वजह से क्या प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, कहाँ पर? पोल्स और इक्वेटर पर. और दूसरा है कि अनइक्वल हीटिंग की वजह से कहाँ पर? लैंड और वाटर सरफेसिस के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस पैदा होते हैं. तो हम पहले देखते हैं कि अनइक्वल हीटिंग, यानी कि अनइक्वल हीटिंग की वजह से जो इक्वेटर और पोल्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो हमें देखना है. तो आपको पता होगा कि एक ग्लोब, अगर आपने कभी देखा हो तो ग्लोब का जो मिडल पार्ट होता है वो इक्वेटर होता है और उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो क्या होता है, इक्वेटर को हम इक्वेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर डायरेक्टली सन रहता है, सन आता है एक स्टेज में. तो क्या होता है कि जैसे ही उसके ऊपर सन आया या उधर सन की हीट ज़्यादा मिली, तो वहाँ की जो एयर है वो गर्मी की वजह से हल्की होकर ऊपर उठने लगी, और फिर उसकी जगह पर ठंडी एयर आसपास के स्पेस से आके ऑक्यूपाई कर ली. तो ये जो उसका उठना, एक हल्की एयर का ऊपर उठना और भारी एयर और ठंडी एयर उसकी जगह कर ले लेती है. तो इस तरह से यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है. अब दूसरा पॉइंट है कि पोल्स पे क्या होता है. पोल्स ठंडे होते हैं, ठीक है, और पोल्स के ठंडे होने की वजह से वहाँ की हवा थोड़ी भारी होती है और प्रेशर ज़्यादा होता है. लेकिन जो एरियाज़ पोल्स को सराउंड करते हैं वहाँ की एयर हल्की होती है और लाइट होती है. तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ की जो गर्म एयर है वो ऊपर उठती है, प्रेशर कम हो जाता है, और पोलर रीजन से उस एरिया में तुरंत एयर मूव करने लगती है. तो इस तरह से हमने देखा कि पोल्स पे कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है और इक्वेटर पे कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, और इसी डिफरेंस की वजह से विंड फ्लो करती है, और यही डेफिनेशन है विंड करंट की. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी next topic, that is unequal heating on the land and water surface. So what happens, land has a quality of absorbing fast and releasing fast. So what happened, land absorbs the heat better than water, and as a result the air on the land heats up more as compared to the air around the water. So what happened, the air above the land rises up being lighter and it creates a low pressure. As a result, the comparatively cool air from the ocean rushes into the place where the slight light air of the land existed. Now this is known as sea breeze. So this happens during the day, and what happens during the night is land cools faster than water in the sea. So in the consequences to that, what happens, the air above the sea is comparatively warmer than the land, and as a result it is lighter because it is warmer and it rises up, and over the sea there is a creation of the low pressure, and the air from the land that is comparatively cooler rushes into that space and occupies that area, and this is how the air currents develop or the wind currents develop at night. So what happened, due to this land breeze and sea breeze, coastal areas have a very pleasant climate throughout the year. Now let's deal with this topic in Hindi.
तो क्या होता है, अब हम लैंड और सी की बात करते हैं कि लैंड की क्वालिटी है कि वो जल्दी से गर्म हो जाती है, यानी कि जल्दी हीट एब्जॉर्ब करती है और जल्दी से हीट रिलीज़ कर देती है वाटर के कंपैरिजन में। तो क्या होता है, जैसे दिन हुआ तो दिन में लैंड ने फटाफट से हीट एब्जॉर्ब की, जबकि वाटर इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। तो जब लैंड ने जल्दी से एब्जॉर्ब कर लिया और फिर वो वहाँ की एयर लाइट हो गई, वो ऊपर उठी, उस एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो गया। लेकिन जो सी है वो उतनी जल्दी तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो वहाँ की जो एयर है वो ठंडी होती है। तो जो स्पेस क्रिएट हुआ वहाँ पे लैंड के ऊपर, वहाँ पे ओशन से ठंडी ब्रीज़ आई और इस तरह से एयर फ्लो कर गई। अब नाइट में क्या होता है कि लैंड जल्दी से हीट रिलीज़ कर देती है, तो जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन जो वाटर है वो धीरे से ही अब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे रिलीज़ करता है। तो रिज़ल्ट में क्या होता है कि लैंड के ऊपर की एयर ठंडी होती है और सी के ऊपर की एयर गर्म होती है। अब सी के ऊपर की एयर गर्म है तो वो हल्की होगी, वो ऊपर उठेगी, तो सी के ऊपर जो है एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब उस प्रेशर में लैंड से एयर आती है और फिल कर जाती है, ठीक है। उस पूरे एरिया को लैंड से एयर आके फिल कर लेती है और ये इस तरीके से लैंड से कहाँ पर सी की तरफ जनरेट होता है एक करंट नाइट के टाइम पे। और इन सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ की वजह से ही कोस्टल एरियाज़ का क्लाइमेट अच्छा होता है और हमें आसानी होती है, वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट होता है। तो इस तरह से सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ जनरेट होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मानसून। सो मानसून क्या होता है? Monsoon happens because there are winds that blow from the sea towards the land, and as a result they have plenty of moisture, and that moisture has the capability to convert itself into the cloud and cause rain. So this is known as monsoon effect. Next is, what are thunderstorms? So the basic reason or the basic occurrence of thunderstorm is when the air has a lot of moisture in it, and as a result it could lead to the formation of clouds and bring rain. So this is how the thunderstorm occur. So what is the probability of increasing the chances of thunderstorm? So what happens is, warm air rises up rapidly and it becomes unstable, and thus the probability of creating a thunderstorm, of the occurrence of thunderstorm, increases. So what happens, thunderstorm sometime is accompanied by the lightning, and as a result it causes a very high or very huge amount of loss of life and material. So there are some of the precautions that one should take during the time of thunderstorm. That is, do not take shelter under the trees, do not lie on the ground, you don't use an umbrella that has a metal ending, because it can cause the lightning to strike over you. And do not take shelter in the metal shades, do not sit near the window, and do not take shelter in a building, because a thunderstorm might cause of short circuiting that would lead to the loss of life. And do not sit in the metal shades, but if you see a car, then roll up the windows, that is close all the windows and stay there, you would be protected. So now let's deal with this topic in Hindi. मानसून क्या होता है? मानसून के नाम से हमें लगता है कि बारिश आने वाली है। तो क्या होता है कि जब हवा बहती है सी की तरफ से, तो जब जो हवा सी की तरफ से आएगी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होगा। अब उसमें इतना मॉइस्चर होता है कि उस मॉइस्चर से क्लाउड बन सकते हैं, और हैवी क्लाउड बनेंगे तो उसकी वजह से रेन अपने आप गिरेगी। तो ये जो हवा होती है, जो मॉइस्चर जिसमें बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रेन कॉज होती है, इसी को हम मानसून कहते हैं। थंडरस्टॉर्म में क्या होता है, एकदम मानसून वाली सिचुएशन होती है, लेकिन बस फ़र्क इतना होता है कि वहाँ पे चीज़ें इतनी रैपिडली होती हैं। मानसून में धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, लेकिन थंडरस्टॉर्म में इतनी रैपिडली, इतनी जल्दी से चीज़ें होती हैं कि एयर को फ्लो करने का टाइम नहीं मिलता है। तो क्या होता है कि एयर हल्की हुई उठी, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर था, तो इतने दूसरी एयर उसकी जगह के लेती है, या इतने वो एयर वहाँ से शिफ्ट होती है, इतनी ही दूसरी एयर उठ जाती है, और इस तरह से मॉइस्चर एक्यूमुलेट होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाउड्स बन जाते हैं और बहुत भारी मात्रा में रेनिंग होती है। अब क्या होता है कि थंडरस्टॉर्म में ना लाइटनिंग भी हो जाती है साथ में, कि अगर थंडरस्टॉर्म हो रहा है तो कभी कभी लाइटनिंग भी साथ में होने लगती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा लॉस हो जाता है लाइफ और मटेरियल का। तो आपकी बुक में बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि अगर थंडरस्टॉर्म आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, जैसे कि पेड़ के अंदर मत बैठो, ग्राउंड पे मत लेटो, कोई मेटल वाली चीज़ होल्ड करके मत रखो, मेटल शेड के अंदर मत हो, विंडो के पास नहीं खड़े हो। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार वहाँ से भी रीड करिएगा। अब थंडरस्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी कैसे बढ़ सकती है? तो थंडरस्टॉर्म की प्रोबेबिलिटी ऐसे बढ़ सकती है कि अगर वार्म एयर है किसी भी एरिया में, तो वो जल्दी जल्दी उठेगी और अनस्टेबल हो
अब वो इतनी जल्दी स्टेबल हो नहीं पाई है और दूसरा एयर का पैच आ गया है, तो इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है। ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि वहाँ की वार्म एयर ज़्यादा है, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी थंडरस्टॉर्म की बढ़ जाती है जब आसपास की एयर बहुत ज़्यादा वार्म। अब दूसरा हम लेट्स डील विद दिस अनदर topic on the same page, that is cyclones. So what causes a cyclone? So we have already studied that everything is happening due to the wind current or due to the pressure difference in the two areas. So the same happens in case of the cyclones, but what is additional here is that the warm air cools down. As the warm air moves up and it is lighter, but as it moves up the temperature decreases and it cools itself down, and as a result it condenses into the clouds, and the heat released during condensation, that is the happening of the condensation process, is accompanied with the release of the heat. So in turn the released amount of heat warms the surrounding air, and as a result that surrounding air rises up and there is again the drop in the air pressure and more air rushes towards it. So this repetitive cycle of low pressure region and high speed wind causes a cyclone. So what are the factors that affect the cyclone? So there are a lot of factors that affect the cyclone, that is wind speed, direction, temperature and level of humidity. So there is one word given in your book, that is anemometer. So what is an anemometer? So anemometer is a device that is used to measure the speed of the wind. So let's just take this whole topic in Hindi. ये जितने भी प्रोसेस हैं सारे प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्रिएट होते हैं। तो अब हम साइक्लोन भी एक ऐसा ही प्रोसेस है, तो अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से दो रीजन में वहाँ की एयर ऊपर उठी, एक रीजन की एयर हल्की होकर ऊपर उठी, जैसे ही वो ऊपर उठी वहाँ उसको कम टेम्परेचर मिला, यानी कि उसका टेम्परेचर गिरा और एज ए रिज़ल्ट वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगी। कंडेंस क्या? वाटर वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में होने लगी, कंडेंस होकर उन्होंने क्लाउड बना लिया। अब कंडेंसेशन प्रोसेस के टाइम पे ना जो हीट है वो रिलीज़ होती है, यानी कि जब वाटर वेपर से लिक्विड स्टेट में जाता है तो हीट रिलीज़ होती है। अब वो जो हीट रिलीज़ हुई, उस हीट ने आसपास की जो एयर थी उसको वार्म किया। अब जब उसने उसको वार्म किया वो भी हल्की हुई, वो ऊपर उठी, वो ऊपर कंडेंस हो गई जाके। अब उसकी कंडेंसेशन की वजह से जो हीट रिलीज़ हुई उसने दूसरी एयर को वार्म किया, तो इस तरह से इतनी ज़्यादा स्पीड में और इतना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि साइकिल इतनी जल्दी होती है कि बस एयर उठी आ गई, एयर उठी आ गई। अब वो इतना ज़्यादा अनस्टेबिलिटी वहाँ पे क्रिएट हो जाती है कि एज अ रिज़ल्ट हाई स्पीड में विंड रोटेट करने लगती है, और जैसे ही हाई स्पीड में विंड रोटेट करती है साइक्लोन की फॉर्म ले लेती है। अब क्या क्या फैक्टर्स है जो साइक्लोन को अफेक्ट करते हैं? तो इसमें आपकी बुक में 4 फैक्टर्स मेंशन किए हुए हैं: विंड स्पीड, डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी। विंड स्पीड पता है कि जितनी स्पीड में विंड ऊपर जाएगी या जितनी स्पीड में विंड ऊपर जाएगी कंडेंस होगी, ऊपर जाएगी कंडेंस होगी, उतना ही बेटर या उतना ही वास्ट साइक्लोन बनेगा। डायरेक्शन मैटर करती है, टेम्परेचर भी आपको पता है, और लेवल ऑफ ह्यूमिडिटी मैटर करता है। अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ विंड वेन, विंड सॉक्स एंड डैमेज कॉज्ड बाय द साइक्लोन्स। सो व्हाट इज़ अ विंड वेन? सो विंड वेन इज़ अ डिवाइस, इट्स अ हैंडमेड डिवाइस दैट इज़ यूज्ड to know in which direction the wind is flowing. So what happens, there is an area and there is an arrow, and sometimes there is also a rooster, that is a cock, right? So what happens ki the rear part is broader, this back part is broader and the front part is narrower. Since the back part is broader, so it gets more air pressure when air strikes. So as a result the tip of the arrow or the beak of the rooster points out in a direction of the wind. So this is how we identify from where the wind is blowing, and the same is with the wind socks, but the difference is that wind socks is made up of a conical textile tube that is specially designed to know the wind direction and relative speed. The more it flutters, the more is the speed of the wind. एक एरो होता है, कभी कभी उसके ऊपर एक रूस्टर भी होता है। तो एरो का जो बेस होता है तो उसमें उसको ब्रॉड चौड़ा बनाते हैं और उसकी जो टिप होती है उसको पतला बनाते हैं, ताकि जब एयर आए तो उसके बेस पे ज़्यादा प्रेशर लगाए और एरो उस डायरेक्शन में पॉइंट करे जहाँ एयर फ्लो कर रही है। सिमिलर केस होता है किसका? विंड सॉक्स का, जो कि एक सॉक्स जैसा होता है, एक टेक्सटाइल फैब्रिक का बना हुआ होता है और विंड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। रिलेटिव स्पीड भी इससे पता लगती है। There are very serious damages that is caused by the cyclones. Some of them are that water in the water bodies get pushed towards the shore, and the surge, and due to this the surge of the water can wash everything away near the
shore. So what happens, the at the low pressure, that is the at the eye or at the center of the cyclone, there is an eye, and the eye has very low pressure, so that low pressure can lift up the water in the seas, and the sea and that lifted up sea water can enter into the low lying areas and destroy up everything. It reduces the fertility of the soil. It also leads to loss of life and property. So let's deal with this topic in Hindi कि अगर साइक्लोन से क्या क्या नुकसान होते हैं। तो पहला है कि जो पानी के अंदर जो पानी की बॉडीज़ के अंदर जो पानी होता है वो शोर की तरफ पुश होता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला इंडिकेशन होता है साइक्लोन का कि पानी शोर की तरफ पुश हो रहा है। और अब क्या होता है, इतना ज़्यादा इंटेंसिटी से किनारे की तरफ वाटर पुश होता है कि वो वहाँ पे रखी हुई सारी चीज़ें, सब चीज़ों को उड़ा देता है, वॉश कर देता है। अब दूसरा होता है कि जब साइक्लोन होता है तो जो साइक्लोन का जो सेंटर होता है उसको हम आई कहते हैं, वहाँ पे सबसे कम प्रेशर होता है, और उस कम प्रेशर की वजह से वो एरिया इतना कैपेबल होता है कि वो पूरे के पूरे पानी को, जितना ऊंचा साइक्लोन है उतना ऊंचा उठा सकता है। अब जैसे ही साइक्लोन पानी उठा के दूसरी साइड मूव किया, वो पानी तो नीचे आएगा। अब वो इतनी स्पीड से और इतने प्रेशर के साथ नीचे आता है कि आसपास उसके रास्ते में जो आता है वो सबको बहा देता है, सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है। सेम यही होता है कि फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है इसकी वजह से, और लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी, मतलब कि प्रॉपर्टी, लोगों की ज़मीन जायदाद और ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। The next topic is a tornado. So when does a tornado take place? So a tornado happens when there is thunderstorm. So the essential condition for the tornado to take place is thunderstorm. Now what happens ki tornado is a high funnel shaped rapidly rotating air column. So what does it mean? It means that you must have seen funnel, right? So it is in the shape of a funnel and it is rapidly rotating air column. It does not have water, it is just air, and it is rapidly rotating than the thunderstorm. So why does this take place? It happens because when there is unstable hot air on the ground and that air rises up and meets the cooler air above, so as a result tornado take place. So the in case of very high or very extreme cases of tornado, that is the speed of the tornado is approximately 500 km per hour, and the tornado is when the tornado is formed around the water body or above the water bodies, then it is termed as water spouts. And similarly, that a cyclone in America is known as hurricane, and a cyclone in Japan is known as typhoon, right? And similar is the case of the Philippines. So let's deal with this topic in Hindi. टॉर्नेडो क्या होता है? टॉर्नेडो की कंडीशन ये है कि जब थंडरस्टॉर्म आएगा तभी टॉर्नेडो होगा। टॉर्नेडो में क्या होता है, एक कुप्पी यानी कि फनल की शेप का एक एयर कॉलम होता है जो कि बहुत जल्दी से रोटेट करता है। अब ये क्यों होता है कि जो नीचे यानी कि ग्राउंड पर जो अनस्टेबल हॉट एयर होती है, जो कि गर्म एयर होती है, और गर्म है तो वो ऊपर उठना ही है उसे, और जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठती है और वो ठंडी एयर से मीट करती है तो उस वक्त ये टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। तो जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं टॉर्नेडो के, उसमें 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक टॉर्नेडो मूव करता है। और अगर यही टॉर्नेडो वाटर बॉडी के ऊपर हो, पानी की किसी बॉडी के ऊपर क्रिएट हो रहा हो, तो उसको हम वाटर स्पाउट्स कहते हैं। सिमिलरली जो साइक्लोन है, साइक्लोन को हम अमेरिका में हरिकेन कहते हैं और हम जापान और फिलीपींस में टाइफून कहते हैं, राइट? सो इन योर बुक देयर आर गिवन सर्टेन प्रिकॉशंस दैट वन शुड टेक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अ टॉर्नेडो, दैट इज़ कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स, स्टोर वाटर, फूड फॉर द फैमिली, etc. So there are a good amount of 9 to 10 points in your books that are considered under the precautions during a tornado. You must have already read them in your 4th, 5th and 6th classes, but go through them. These are very generalized points and I do not need to mention it here. Like providing a first aid box, you have known it from the very early years of your education, that is in the first class itself. Now the next point is safety measures to be taken by the government. So it covers that the efficient cyclone forecast and warning system. So what is this? That the government should know that it should have measures to know that the cyclone can take place, and as a result it have a very good warning system. So what is rapid communication? You know that there is a cyclone, but it is of no use. This information is of no use if you are not able to communicate it rapidly to the other people. And next one is cyclone shelters. So what are cyclone shelters? These are temporary resident areas that are created by the government for the people to leave the
city or they leave the area surrounding the water bodies, so that if cyclone strikes there, the loss of life is not caused. Next one is fast and effective ways of moving people to safe places. That means they should have various equipments and various vehicles so that they can move the people from the affected area to a safer zone. So let's deal with this topic in Hindi. क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट को अपनाने चाहिए साइक्लोन के टाइम पर? तो पहला है कि एफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट, यानी कि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो बता सके कि साइक्लोन आने वाला है। बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स होते हैं इस चीज़ के लिए, और वार्निंग सिस्टम अलर्ट करें, यानी कि सबको बताएं कि यहाँ पे साइक्लोन आ रहा है। आपको पता है कि साइक्लोन आने वाला है, लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन का कोई मेथड नहीं है, इस इन्फॉर्मेशन को बाकियों तक पहुँचाने के लिए कोई मेथड नहीं है, तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए रैपिड कम्युनिकेशन भी उतना ही ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट है साइक्लोन शेल्टर्स। तो ये टेम्परेरी शेल्टर्स होते हैं, टेम्परेरी रेजिडेंट पर्पज़ के लिए एरियाज़ होते हैं जो कि गवर्नमेंट बनाती है ताकि लोग उसमें आके रह सकें, जो भी अफेक्टेड एरिया के आसपास लोग रहते हैं उधर आके शिफ्ट हो सकें, और ऑफ कोर्स कुछ टाइम के लिए। नाउ लास्ट वन इज़ उस एरिया तक मूव करने के लिए उनके पास इफ़ेक्टिव व्हीकल्स और इफ़ेक्टिव सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी लोगों को एरिया तक मूव करा सकें। नो नेक्स्ट इज़ कि साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में अगर आप रहते हो तो आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये आपकी बुक में 4 पॉइंट्स दिए हैं, डू रीड देम ऑल्सो। जैसे कि बहुत ही जनरलाइज्ड पॉइंट्स हैं, जैसे कि कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पियो, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज़ मत करो, और अब मतलब सिर्फ अब मजाक मस्ती के लिए कहीं बाहर मत निकलो, और जो सिक्योरिटी और कॉर्पोरेट फोर्सेस हैं उनको कॉपरेट करो, उनको ज़बरदस्ती का परेशान मत करो। तो यही सारी चीज़ें आपकी बुक में एक बार आपने पढ़िएगा। Now the very last topic of this chapter is the use of the advanced technology in detecting the cyclone. So that is the picture from the satellites. We know that we have various satellites over the earth and over the moon. So what happens that the pictures from the satellites are taken and we use it for the weather monitoring to identify whether the cyclone would take place or not. And in case the cyclone take place and if we are able to identify it, then the cyclone alerts are issued 48 hours in advance and the cyclone warnings are issued 24 hours in advance, and those messages are broadcasted at regular intervals. So let's deal with this topic in Hindi कि क्या एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है साइक्लोन डिटेक्शन और साइक्लोन प्रिवेंशन में। तो क्या होता है कि प्रिवेंट करना तो मुश्किल है, लेकिन उससे होने वाले डैमेज को हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है कि जो सैटेलाइट्स पिक्चर्स लेती हैं उन पिक्चर्स को अच्छे से ऑब्ज़र्व करके पता लगाना कि वेदर में चल क्या रहा है और साइक्लोन्स हो सकता है या नहीं। इन केस अगर साइक्लोन होने के चांसेस हैं तो 48 घंटे पहले, यानी 2 दिन पहले अलर्ट जारी कर देना कि हाँ ठीक है यहाँ पर साइक्लोन होने वाला है। थर्ड पॉइंट है कि साइक्लोन वार्निंग, कि साइक्लोन 24 घंटे पहले ही साइक्लोन वार्निंग दे देना कि यहाँ साइक्लोन होने वाला है और ये आप कर सकते हैं, ये करिए, ये मत करिए। दूसरा है इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करते रहना हर रेगुलर इंटरवल पे, ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ बैठी रहे कि अगर साइक्लोन आता है तो इमीडिएटली हमें ये स्टेप्स लेने हैं। सो विद दिस वी एंड दिस टॉपिक एंड दिस चैप्टर हेयर। Do read the textbooks, they are compulsory, and solve your assignment that would be given to you at 5 p.m. today. Do it in neat handwriting, answer to the point. Good luck, take care, stay safe.